اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔ آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، والصبح تنفس، صبح کی سانسیں لے۔ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت میں، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں۔ میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ والصبح تنفس، یہی آیت ہے، اذا تنفس ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی ہیں۔ صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے، اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال طیب طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے۔ تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار، نماز کی طرف جاتے ہوئے، آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار
आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले हैं और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले हैं। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूं, गौर से समझिएगा। रात भी आप मुझे कह रहे थे कि हमें राज बताया करें। मैंने कहा जब सोते हो मुझे दुख होता है, फिर बात मुख्तसर करके चला जाता हूं। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं। गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिब तो मन्नमा खलकनाकुम अबसम, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं। आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात, बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें, जो हमारी जिंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फन और सब्जेक्ट से दूर करके फकीर, गरीब, मंगता, भिकारी कर दें, वो आफात, वो बलियात, वो आफात, वो बलियात जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे हिफाजत फरमाते हैं और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है, वो सारा हिस्सा इसे अता कर देते हैं। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तमंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क, वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है और सांस जिंदगी है। सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है। और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में यह बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, यह अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है, कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निज़ाम है और इसमें आज़म की अनोखी तासीर है और इसमें आज़म का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आज़म की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी ज़िंदगी में तरक्कियाँ, इज़्ज़तें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिज़्क और सारे दिन की किफ़ायत, हर आफत, हर बला, हर वबा,
ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے، اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے بتا کے جانا چاہتا ہوں، وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا، قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کرنا۔ بظاہر کوئی نظر کچھ نہیں آتا، امام سے پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں، نظر کچھ نہیں آتا پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے نظر کچھ نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم اثر ہوتا ہے، تاثیر ملتی ہے، کمال ملتا ہے، رزق چھنتا بھی ہے ملتا بھی ہے، رحمت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، عافیت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، بیماریاں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، اور تمنگریاں رزق عافیتوں کے دروازے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں فجر سے پہلے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگوں کو تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے، واقعات اور مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فجر سے پہلے بہت سے معمولات بتاتے ہیں، کبھی بتاتے ہیں کہ 40 بار سورۃ فاتحہ میم کے وصل کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، کبھی کچھ اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی کا ہر لفظ اسم اعظم ہے، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی شان، عظمت اور کبریائی ہے، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔ آپ کی تمنگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت صبح سانس لیتی ہے۔ پھر آپ نے فجر کے بعد ایک عمل کیا ہے، بسم اللہ علی دینی والا، سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہم اجرنا، یہ عمل جو کیے ہیں یہ فجر کے بعد ایسے وقت میں کیے ہیں جہاں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں اس وقت گاڑی سڑکیں صاف ہوں گی یا مصروف ہوں گی؟ ہاں، کیوں؟ اکثر نہیں ہوتے۔ اس طرح اللہ کا نظام ہے، اس طرح اوپر نیچے کا راستے بھی صاف ہوں گے، ہاں، رش نہیں ہوگا۔ اللہ رش سے پاک ہے، سارا جہان مانگے سارا جہان لے، سارا جہان پل میں مانگے، میرا رب رش سے پاک ہے، اس وقت رش نہیں ہوتا، اس وقت رش نہیں ہوتا اور رش کا وقت نہیں ہے اور اللہ کی قبولیت کا عین وقت ہے۔ پھر اگر فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے تو سورۃ یاسین اتنی سفارش اور اتنی توقع اللہ کی بارگاہ میں تعریف اور اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔
अच्छा, ये तो उस बंदे का है जो अकेला मांगता है, ये उस बंदे का है जो अकेला मांगता है। और जो इतना बड़ा मजमा सूरत यासीन पढ़े और फिर अल्लाह से फरियादें मांगे करे और अल्लाह के सामने अपना दर्द, अपना गम, जैसे अभी हम दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगे, मेरा अल्लाह अपनी रहमत खासा से अता फरमाते हैं। एक वाक़या सुनाता हूं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे और बीमार आके रहते थे। शर्त यह थी कि फजर से पहले सारे जमा हो जाएं, फजर से पहले सारे बीमार जमा हो जाएं। और ये चीज़ मैंने ख्वारिज़म में एक शहर है नौराता, वहां लोग नौरातें आके गुजारते हैं। नौराता शहर है। नौराता शहर के साथ एक बाबा जी हैं, कीचर मास बाबा, कीचर मास बाबा, वहां की जुबान में कोई नाम होगा। मैं वहां गया, लोग हैं, ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। एक अल्लाह वाले से उनके पास बीमार आते थे, 9 रातें गुजारते थे। कोई 9 रातें गुजारते थे, कोई 19 रातें गुजारते थे, कोई 29 रातें गुजारते थे। 9 रातें, 19 रातें, केस बीमार ज्यादा होता था, 29 रातें गुजारते थे। अच्छा, वो क्या करते थे, उनकी शर्त एक थी, और वहां भी मैंने ये देखा वहां भी यही शर्त थी। क्या? वो शर्त ये थी, फजर से 1 घंटा पहले आके बैठ जाना है हजरत के पास। हजरत ने मामूलात करवाने ऐसे, आयतल कुर्सी, फातिहा पढ़वानी है, जिक्र करवाना है, तस्बीहात करानी है, फिर फजर पढ़नी है, फिर फजर पढ़ने के बाद सबको सूरत यासीन पढ़ानी है और दुआएं पढ़ानी है। फिर एक बंदा खड़ा होता था, उनमें एक बंदा खड़ा होता था जो साहिब दुआ था, फिर वह दुआ कराता था और सारे आमीन कहते थे, और सारे आमीन कहते थे, लंबी दुआ कराता था और गिड़गिड़ा के दुआ कराता था और फरमाते थे ये जिक्र है, जाओ सारा दिन पढ़ो और फिर दूसरी रात सुबह हमारे पास फिर ऐसे आना। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास कोई मरीज लाइलाज ले जाएं, सेहतयाब हो जाता है। उनके बारे में मशहूर था, कोई जादू का जकड़ा हुआ ले जाए, उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उनके बारे में मशहूर था, कोई नजर बद और हसद का मारा हुआ ले जाए, जिसको मुआलिज डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, वो सेहतयाब होके आता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, अपाहज ले जाए, ठीक हो जाता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई मर्जों, कर्जों, बीमारियों, मुश्किलों और माजूरियों और मजबूरियों का ऐसा मारा हुआ कि जुबान से नहीं निकाल सकता, अंदर रोग उसको खाए जा रहा है, वो ठीक हो जाता था। उसकी बुनियादी वजह वो सुबह को जो सांस है ना, जो सुबह सांस लेती है और फिर सांस निकालती है, और जो सांस निकालती है वो सुबह बैठने वाले वो सांस अपने अंदर ले लेते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा मछली लाया, टुकड़े टुकड़े मछली, कहा आग पे भूनता हूं, आग नहीं लगती। अल्लाह ने मछली को बोलने की तौफीक दी। मछली बोली, ये तो मुझे दुनिया की आग में जलाता है, दुनिया की आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग में नहीं जला सकती। नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, मुझ पे तो जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। मैं क्यों? कहा एक बंदा दरूद पाक पढ़ते 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 दरिया नदी के किनारे आया, उसने वुजू किया और वो कुल्ली जो वुजू वाला पानी था, मुंह वाला पानी था, कुल्ली के जरिए जब पानी में फेंका, मछली कहने लगी मुझे उस वक्त प्यास लगी थी, मैंने वो पानी पी लिया, अब दरूद वाला पानी मेरे अंदर है, ये मुझे आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। यही कुछ
जब सुबह सांस लेती है और सांस निकालती है, आप जैसे सहरखेज, आप जैसे सुबह उठने वाले, सुबह पाने वाले उस सांसों में से हिस्सा लेते हैं, और वो बरकत का सांस, रहमत का सांस, दराजी उम्र का सांस, सेहत और फिटनेस का सांस जब आपके अंदर जाता है, रिस्क, तवंगरी, बरकत, वुसअत, इज्जत के दरवाजे खोल देता है। तस्बीह खाने से लेने क्या आए हैं? नादान होगा जो कहेगा कि तस्बीह खाने में तो गया क्यों था, क्या मिला तुझे? उसे कहा आ मिलता है क्या मदीने में, एक बार आके देख, एक बार आके देख। करते हैं माल अमाल, दामन फैला के देख, आ तो सही, यहां के निजाम को समझ तो सही। दूर बैठा बातें कर रहा है और कहते क्या पाया तेरे पीर ने, क्या दिया? ये नूर, ये रहमतें, ये बरकतें कहां मिलती, कैसे मिलती, और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके घर के कितनी आने वाली आफतें, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां ऐसे टलती हैं आप सोच नहीं सकते। भेरा, भेरा सरगोदा के साथ एक शहर है भेरा। मैं भेरा में था 88 में, 1988 में अगस्त था। वहां एक दुर्वेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। और अल्लाह वालों के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छल आई, सैलाब आया, और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया, चनाब है ना, जेहलम, जेहलम, जज़ाकल्लाह, जेहलम दरिया है, बड़ा दरिया है। वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अल्लाह दिया। अल्लाह दिया मुझे याद है, छोटे से कद का बंदा था, इश्क था उसको, इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्बीह खाने से, इश्क था। अल्लाह दिया को कहने लगा, लोग एतराज करते, अल्लाह दिया क्या करता है, क्या मिलता है? तेरे घर की मस्जिद में नहीं है तुझे, ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे की निवाले मिलते हैं। अल्लाह दिया चुप होता था, अल्लाह दिया चुप होता था। अल्लाह दिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहां रमजान में, रमजान की बात है, तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गई। अल्लाह दिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अल्लाह दिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ था। तूफान ने भूसे को उठाया नीचे से, भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा वो भूसे का ढेर, मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान, हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। मेरी वजह से नहीं, इन आमाल नबवी की वजह से, इन मसनून आमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है, एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, और अपने आज़्म का
یہ अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिए ने कहा भूसा, उन्हें कहा रुल गया। 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठाया, उठा आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं और शौक से करते हैं और जज्बे से करते हैं और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत अजमत हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। मेरा अल्लाह भी कहता है ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70-70 हजार कलमे का निसाब मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70-70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70-70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाले महफिल के लिए, बाप चोर था, बाप चोर। आप जैसे घर से निकले और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें ये अमाल आपके घर नस्लों को। कहने लगे हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्की था काला, उसको खा गया, था समझदार के जहर ने कर गया, शोर किया, ओ लोगों रात का वक्त और किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी। मैंने उनसे कई कलमे के निसाब हदिया लिए। मुझे कहने लगे रजदा ही, रजदा भी हैं, जब भी आता है कलमे का निसाब दो। कहने लगे शोर किया, शोर करके कहने लगे लोगों जल्दी आओ मैं फलां चोर हूं। लोग आए तो भैंस कहा ये मैंने फलां बंदे की भैंस चोरी की है, आप मुझे जानते मैं फलां चोर हूं, मुझे मुश्की सांप ने काटा है, जहर असर कर गया, मैंने बचना नहीं है, ये मेरी वसीयतें हैं, फलां की चोरी की उसको लौटाना है, फलां को दुख दिया। वसीयतें सुनते रहो, सारे सुनो, एक एक चीज की वसीयत की, वसीयत करते 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 कहने लगता है मेरे बेटे की दुआ मुझे लगी है, मेरे कलमे के गवाह रहो, और चला गया। पहले तौबा की, सारी उम्र चोरियां करते करते, धोखा देते 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 देते, आप जैसा कोई बेटा अल्लाह की मोहब्बतों अल्लाह की राहों में चला था और वहां जाके मांगता था, उसकी दुआओं का असर है बाप का खात्मा ईमान पे हुआ, मौत से पहले तौबा की और कलमे वाली मौत नसीब हो गई। अल्लाह हू अकबर।
किस्मत के सौदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तस्बीह खाने में कबूल करता है। किस्मत के सौदे होते हैं फिर जो तस्बीह खाने में आके कदरदानी से बैठते हैं, कदरदानी से रहते हैं, अजमत से रहते हैं, तस्बीह खाने के दरो दीवार को चूमते हैं और तस्बीह खाने के दरो दीवार की और यहाँ के लंगर, यहाँ के रहने की, यहाँ के जिक्र अज़कार की, यहाँ के इज्तिमाई आमाल की इज्जत करते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। आप अपने घरों में बहुत कुछ भेज रहे हैं, बहुत कुछ भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं आप गुमान नहीं कर सकते।